آگے سنیے گا، اس کے بعد اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، اس کے بعد آگے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر میہ نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ کئی دعائیں، کوئی پریشان لوگ، کئی ڈرے ہوئے لوگ آسمان کے خدا سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا تمہارے آٹے کا مٹکا بھر دو، پھر ایک روٹی بنا دیں گے تمہارے لیے۔ خدا کہہ رہا پہلے روٹی بنا دے تو مٹکا بنا دو۔ خدا ہم کو 5 کلو تیل دے دو، پھر ہم تمہارا پراٹھا بنا دیں گے۔ خدا کہہ رہا پہلے پراٹھا بنا دے، 5 تیل دے دیں گے۔ اور اسی لیے گھر میں پراٹھے نہیں ہیں، اسی لیے گھر میں تیل نہیں ہے، اسی لیے گھر میں آٹا نہیں ہے، اسی لیے خوشی نہیں ہے، اسی لیے تسلی نہیں، اسی لیے بچے برباد ہو گئے، اسی لیے ہم اپنا مکان کمپلیٹ نہیں کر پائے، 17 سال سے آدھا بڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے خدا کا کام نہیں کیا۔ اور ہم اکثر کہتے رہتے ہیں پیسہ کریں گے، پیسہ آپ کے لیے کریں گے، آپ پیسہ کریں گے، کتنے لگے پیسہ کریں گے، بچوں کو اسکول سنڈے اسکول بھیجیں گے، اب بھیجیں گے، جیسا بڑے ہو جائے تو بھیجیں گے، سب جگہ بھیجا ہے، آپ نرسری میں بھیجا ہے، کے جی میں بھیجا ہے، اور کالج میں بھیجا ہے، یونیورسٹی میں بھیجا ہے، لندن میں بھیج دیا پڑھنے کے لیے، امریکہ میں بھیج دیا، لیکن جہاں نہیں بھیجا وہ تھا بھیجا، وہاں نہیں بھیجا۔ بھیجیں گے، پہلے بچے کو میرے یہاں بھیج، پہلے میری باتیں پڑھ، پہلے میرے لے لا، پہلے مجھے زندگی دے، پہلے میری باتیں کر۔ اس بائبل کی مشہور آیت کا شروعات پہلے سے ہوتا ہے، اور آسمان کا خدا بھی آپ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ آپ کریں سب سے پہلے یسوع۔ آپ کی لڑکی کی شادی دنیا کے سب سے بڑے دھنوان آدمی کے لڑکے سے ہو رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، پر اس سے پہلے کچھ شروع کریے، کہیے گا آئیے ہم دعا کریں، اور دعا کر کے کہیے گا خدا باپ اس شادی کو تیرے ہاتھ میں سپرد کرتے ہیں، اس کی آغاز تیرے نام سے کرتے ہیں، اس شادی میں کوئی کام تیری مرضی کے خلاف نہیں کریں گے، جو کام کریں گے تجھے خوش کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ بڑا بنگلہ 18 کمروں کا بنوانا چاہتے ہیں، 9 باتھ رومز کے ہوں گے، 3 گاڑیوں کے کھڑے ہونے کے گراجز ہوں گے، اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ 2.5 لاکھ روپے کے ٹائل لگائیں گے، اچھی بات ہے۔ آپ سب امریکن گیجٹس لگائیں گے، آپ کے ہر باتھ روم کے اندر گیزر ہوگا، شاورز ہوں گے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، پر مکان کو شروع کرنے سے پہلے کہیے گا خدا باپ پہلے تجھے درجہ دیتے ہیں، آج تجھ سے دعا کرتے ہیں، گھر میں ہوم میٹنگ کرائیں گے، خدا ہم اس گھر کو مخصوص کریں گے، گھر کے چار دیوار پر تیرا خون لگائیں گے، اور دعا کر کے پہلے خدا کا درجہ۔ بیچ میں یاد آئے آپ کو کہ آپ نے خدا کو درجہ نہیں دیا، آخر میں آپ کو یاد آئے یہ اچھی بات نہیں۔ پہلے میں چاہوں گا ایک اور آیت پڑھے، متی کی انجیل 6 باب 12 آیت پڑھے، جلدی پڑھے گا، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 12 آیت ہے، متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کی 12ویں آیت میں خدا یسوع مسیح ایک دعا سکھا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، اور اس دعا کی خاص بات سنیے گا کیا ہے۔ جی ہاں، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو، اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو، قصورواروں کو معاف کیا ہے، اپرادھیوں کو معاف کیا ہے، معاف کیا، کیا معاف کیا ہے نا؟ ہاں بھائی، جیسے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، ہاں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اگر ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا، پہلے کیا ہے؟ پہلے اس نے معاف کیا، پہلے کس نے معاف کیا؟ ممی تم اپنی بہن کو معاف نہیں کرو گے تو خدا تم اپنے معاف کرے گا۔ پاپا اگر تم ممی کو معاف نہیں کرو گے تو خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اور ممی اگر تم پپا کو معاف نہیں کر رہی ہو کہ نہیں مر جائے گا یہ آدمی جلتے سمے پہ بیٹھ جائے گا، پر اسے معاف نہیں کریں گے۔ تم دعا آئے ہمارے باپ کی روز کرو، لیکن آسمان تک دعا پہنچے گی نہیں، کیونکہ جیسے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے، اگر نہیں کیا ہے تو معافی نہیں آئے گی، آسمان نہیں آئے گا، دریچے نہیں کھلیں گے، برکت نہیں آئے گی، مکان کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ لسٹ نہیں ملے گی، یہ سب چیزیں تم کو آپ سے آپ نہیں ملے گی۔ پہلے تم اپنا تیسری جگہ متی کی انجیل 5 باب 23 میں آئے تو 24 میں آئے، متی کی انجیل 5 باب 23 میں آئے اور 24 میں آئے، سنیے گا یہاں کیا لکھا ہے۔ جی
बस अगर तू कुर्बान गाह पर हाँ अपनी नजर गुजारता हो, आपको याद हो गया ना, कहानी याद होगी ना कि जब तू वेदी पर खड़ा होकर के अपनी भेंट लेकर आए, अपनी कुर्बानी लाए, खड़ा है, वेद काम खड़े हैं, सिनेमा घर नहीं खड़े, दारू खाने नहीं खड़े, काम है वेदी पे। आज मैं वेदी पे खड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, पवित्र लोगों की बात कर रहा हूँ, बाइबल पढ़ने वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास 13 ट्रांसलेशन बाइबल के हैं, जिनके हर दरवाजे पर सलीब टंगी है। हम उनकी बात करें जिनके कान में 3-3 सलीब लटकी हैं, 2 सामने 1 पीछे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो वेदी पर खड़े हैं। उससे खुदा कह रहा है जब तू वेदी पर खड़ा हो, सुनिएगा, और वहां तुझे याद आए, और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत किसे है? शिकायत उसे मुझसे है। कह रहे जहन्नम में जाए, उसे हम सारी दुनिया को ठेकेदार नहीं, हम अपने ठेकेदार हैं, हमारे दिल साफ है, हम दिल में रोज झाड़ू लगाते हैं, हम तो अपना दिल हार्दिक से साफ। अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे कुछ शिकायत है, सुनिएगा, तो वही कुर्बान गाह के पास अपनी नजर छोड़ दे। कुर्बान गाह पर अपनी नजर नहीं छोड़ सकता, अपनी भेंट वेदी पर नहीं छोड़ सकता। मैं एक दिन एक दूसरे मुल्क जा रहा था, मैं अपना बैग लेकर के काउंटर पे पहुंचा, चेक इन काउंटर पे मेरा बैग रख दिया, तो कहने लगा आप एयरपोर्ट टैक्स दे के आए? उस जमाने में एयरपोर्ट टैक्स पहले देना पड़ता था, तो मैंने कहा एयरपोर्ट टैक्स नहीं दिया, चलिए एयरपोर्ट पहले दे के आइए। तो मैंने कहा ये बैग ये रखा दीजिए, मैं एयरपोर्ट टैक्स के दे के आ रहा हूँ। कहने लगे इसको उतारिए और वहां रखिए, जब एयरपोर्ट टैक्स दे के आएगा तब अपने सामान आप यहाँ रख सकेंगे। तब मुझे समझ में आया कि जब एयरपोर्ट पर ट्रैवल एजेंट आपको अपना सूटकेस नहीं रखने देता, तो आसमान का खुदा आपकी कुर्बान गाह पर कुर्बानी कैसे रखने देगा? जब तक कि आपको अपने भाई से शिकायत रहेगी, कि आपके भाई को आपसे शिकायत रहेगी, तो वही छोड़ दे। सुनिए लिखा है, और जाकर पहले अपने भाई से मिलाकर, कम से कम इस बात को तो वजन डालिए, वो खास करी है, तो जाकर पहले अपने भाई से मिलाकर, ठीक है, तुम गाना मांगते हो, बेस्ट सिंगर बनना मांगते हो, बेस्ट म्यूजिशियन बनना मांगते हो, पादरी बनना मांगते हो, गिरजा स्टार्ट करना मांगते हो, बिजनेस स्टार्ट करना मांगते हो, मकान बनाना मांगते हो, अपनी लड़की की शादी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की लड़के से करना मांगते हो, सब कुछ ठीक है। तो दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी हो, तो बड़ी मोटरसाइकिल खरीदना मांगते हो, ये सब बातें अच्छी हैं। ये सब काम करने से पहले सुनिएगा, तू पहले जाकर उससे मेल कर ले, तब आकर अपनी नजर गुजार, तब आप खुदा के लोगों खुदा आसमान में कोई रब्ती नहीं कर रहा। अगर आप अकेले हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, कोई खुशी नहीं मिली, कोई तरक्की नहीं मिली, जहाँ थे वहीं हैं, बच्चे भी आपके वहीं हैं, कोई आपको ध्यान नहीं करता, कहीं आपकी इज्जत नहीं हुई, कहीं आपकी नामलकी नहीं हुई, आप बिल्कुल अकेले हैं, ये आसमान के खुदा की गलती नहीं, ना ही आपके आसपास के लोगों की गलती है। आसमान के खुदा ने पहले बता दिया है कि पहले तुम अपना काम करो, खुदा को ऊपर दर्जा दो। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना मैं यही रह जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ आपके पास 2 दिन हैं, कि 2 दिन में इस मरकज पे बातें करनी है, इस केंद्र पे बातें करनी है। आगे बढ़ेंगे, और पहले तुम पहले क्या काम करो। 6:33 में वापस आ जाएंगे। सबसे पहले तुम पहले क्या करो, पहले क्या करो, उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी, तो उसकी बादशाहत, उसकी रास्तबाजी, तो उसकी बादशाहत का जिक्र करते हैं, इसका मतलब उसकी अथॉरिटी, उसका अधिकार। कहते आओ तो आओ, कहते जाओ तो जाओ, कहते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, कहते बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अधिकार, पहले उसे राजा बनो, तुम्हारे घर में राजा हो, तुम्हारी लड़की की जिंदगी में राजा हो। जिस दिन तुम्हारे लड़के की शादी जश्न से हो रही हो, बाप 2000 ताले लगी हो, उस दिन तुम्हारी शादी में आसमान का खुदा राजा हो। राजा राजा पहले उसको राजा बनाओ, पहले उसकी बादशाह, उसकी राजपादी, उसकी धार्मिकता। खुदा बाप, तुम
क्या चाहता है, तेरी क्या मर्जी है, मुझे क्या पूरा करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। ये धार्मिकता है। मैं तेरी मर्जी के विरोध में कोई काम नहीं करूंगा। अगर तू कहेगा ठीक है तो ठीक है, अगर तू कहेगा गलत है तो गलत है। उसकी बादशाह और उसकी धार्मिकता, इसका क्या दोष सुनेगा? उसकी बादशाह और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। तलाश, बोलिए तलाश। तलाश। सारी दुनिया के लोग तमाम चीजों की तलाश कर रहे हैं। किसी को देखिए तो मकान तलाश कर रहा है, कोई बहू तलाश कर रहा है, कोई दामाद तलाश कर रहा है, कोई गाड़ी तलाश कर रहा है, कोई मकान तलाश कर रहा है, कोई तो छुप छुप कर तलाश कर रहा है, ढूंढ रहा है। उर्दू में एक और वर्ड तलाश के लिए कि उसकी बादशाहत और उसकी राष्ट्रबाजी के फिराक में रहो। फिराक, मैंने ऐसे लिखा है, तलाश, फिराक, जुस्तजू, तमन्ना, खोज या जिज्ञासा। आपकी जिंदगी को देखकर लोग मालूम हो जाता है कि आप तलाश किसकी कर रहे हैं। आपकी जिंदगी को देखकर मालूम हो जाता है कि फिराक किस बात की है। आपको देखकर पता चल जाता है कि जुस्तजू किस चीज की है। आपको देखकर मालूम हो जाता है कि दिमाग में तमन्ना किस बात की है। आपको देखकर मालूम होता है क्या खोज रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं क्या खोज रहे हो, हर आदमी कुछ ना कुछ खोज रहा है। आपको देखकर पता चल जाता है कि जिज्ञासा किस बात की। खोजो। तमाम जमाना, तमाम दुनिया कुछ ना कुछ खोज रहा है। कोई दौलत खोज रहा है, कोई इज्जत खोज रहा है, कोई तारीफ खोज रहा है, कोई दौलत की तरक्की खोज रहा है, कोई दूसरे मुल्कों की जाने की ख्वाहिश में मुब्तला है। सब कुछ कुछ खोज रहे हैं। आसमान का खुदा कह रहा है, पहले उसकी बादशाह को खोजो, पहले उसकी धार्मिकता को खोजो। खुदा बता क्या चाहिए तुझे, क्या व्हाट विल मेक यू हैप्पी। मैं और क्या करूं, मेरे घर में और क्या मिल रही है, मेरे घर में क्या बात तेरी मर्जी के खिलाफ है, मैं कैसे तुझे राजा बना सकता हूं। मैं खोज रहा हूं, मैं इसको ढूंढ रहा हूं। देखिए एक आयत पढ़वाऊंगा, इस आयत को सुनिएगा। कुलुस्सियों की किताब उसके 3 बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़िए। कुलुस्सियों की किताब पौलुस रसूल कुलुस्सियों में कलीसिया को चिट्ठी लिख करके ये बता रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताकर रिपीट करूँ ये बात जो आज से 2000 साल पहले पौलुस रसूल कुलुस्सियों की कलीसिया को बता रहा था। क्या बता रहा सुनिएगा। हाँ, 3 बाब पहली और दूसरी आयत। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलमे बाला की यानी हिंदी में क्या लिखा है? आलमे बाला है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब तुम मसीह के साथ जिंदा हो गए हो तो तुम आलमे बाला या स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो। आगे सुनिए क्यों? हाँ, मसीह खुदावन मौजूद है। मसीह खुद मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर आसमान की चीजों को खोजोगे तो वहां यीशु मसीह मिलेगा। धार्मिकता को खोजोगे यीशु मसीह मिलेगा। प्रेम करने के लिए जाओगे वहां यीशु मसीह मिलेगा। माफ करने जाओगे वहां यीशु मसीह मिलेगा। मदद करने जाओगे वहां यीशु मसीह मिलेगा। माफी मांग लोगे वहां यीशु मसीह मिलेगा। बलिदान करोगे वहां यीशु मसीह मिलेगा। हम लोग कहते हैं हमको यीशु मसीह मिला ही नहीं, 12 साल हो गए नहीं मिला। हम तो हर संडे चल जाते, हमको मिलेंगे। मिलेगा कहाँ? जब तुम आला में बाला की चीजों को ढूंढोगे, जिस बाजार में यीशु मसीह है ही नहीं उसी बाजार में ढूंढ रहे हो तो कहाँ मिलेगा? आला में बाला के बाजार में जाओ, आसमान के बाजार में जाओ, स्वर्गीय वस्तुओं के बाजार में जाओ, वहां ढूंढो, वहां की चीजों को पाने की कोशिश करो। दिमाग में वहां की चीजें हो, तमन्ना वहां की हो, बातें वहां की हो, तब तुम्हें क्या मिलेगा? रोज यीशु मसीह मिलेगा।